Hi guys, welcome to our YouTube channel Science के साथ. We have covered all MCQs of industrial and inorganic chemistry chapter wise. So all videos link are given in the description box. So please watch that video. अगर आपको MCQ PDF फॉर्म में चाहिए तो आप सभी को हमारे वेबसाइट ssclasses.in पे विज़िट करना है और वहाँ से PDF डाउनलोड करना है. वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MCQ. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है. फर्स्ट चैप्टर पर कार्बेनियंस एंड देयर रिएक्शन. सो आई एम सुहानी पटेल from ssclasses.in. So let's start today's first question. The most stable carbanium among the following. First option is CH2NO2 2. Second option is CH2 double bond CH2. Next is CH3 single bond CH3 and last option is CH triple bond CH. So for this question the correct option is option A, because minus I effect is directly proportional to stability of carbanion. As we know, nitrogen is more electronegative than triple bond or double bond. That's why A option is correct option. Let's move further question. The strongest acid among the following is option A, CH2 double bond CH2. Next is CH3 single bond CH3. Next is CH3 single bond C triple bond C single bond CH3. And last option is CH triple bond CH. So the correct option is D option, because percentage of S character is directly proportional to acidic strength. As we see here in option C also triple bond is there and option D also. But in C there is no hydrogen on carbon, triple bond carbon. So that's why option D is correct, because there is no hydrogen to donate a proton. Remember that things. Next question is a mixture of benzaldehyde and acetaldehyde on heating with NaOH and then dehydration gives. So options are here. Here is a benzaldehyde and acetal molecule. So and reaction is occurring in presence of NaOH. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं. जैसे कि अभी डी ऑप्शन तो कैनिजारो प्रोडक्ट है, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. उसके बाद से ए ऑप्शन है. ए ऑप्शन में फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. एज अपने कंपाउंड में बेंजाल्डिहाइड है तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो ए ऑप्शन भी नहीं है. तो बी और या सी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बिकॉज बी में कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है. ओके क्वेश्चन में क्या है? देन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगाना. तो सी ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following compound undergo aldol condensation? So options are C ethanol. Second is 2,2-dimethyl propanaldehyde. थर्ड ऑप्शन इज बेंजोफेनॉन एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. जो मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है. तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है इसीलिए ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा. रिमेनिंग में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन? ऑप्शंस आर एसिटाल्डिहाइड, 2-phenylethanol. C option is 2,2-dimethyl propanaldehyde. D is propanaldehyde. जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है. तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज 2,2-dimethyl propanaldehyde में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. Move to further question. 6th question. It is base catalyzed condensation of an aromatic aldehyde with an aliphatic acid anhydrides. Options are Dickmann cyclization, option B Claisen ester condensation,
Next option cross-Claisen reaction, and last option is Perkins reaction. So for these question the correct answer is Perkins reaction. Perkins reaction is name reaction which is base catalyzed reaction of aromatic aldehyde with acid anhydride to give alpha beta unsaturated acid. Seventh question, the product formed in the Perkins reaction is option R alpha beta unsaturated acid, alpha beta unsaturated ester, alpha beta unsaturated aldehyde, लास्ट ऑप्शन इज बीटा कीटो ईस्टर. सो लास्ट हमने डिस्कस किया है कि पर्किन रिएक्शन नेम रिएक्शन है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिंथेसाइज करने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है. तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ए. 8th question, cinnamic acid and acetic acid is prepared by using which reaction? The options are cross-Claisen reaction, B is Classen's ester condensation, third is Perkins reaction, and last option is Wittig reactions. So for these the correct answer is Perkins reaction. Cinnamic acid and acetic acid is prepared by using Perkins reaction. 9th question, beta keto ester is synthesized by options are cross-Classen's reactions, option B Perkins reaction, option C is Claisen ester condensation, and last option is Wittig reaction. So for these the correct answer is Claisen ester condensation. Here is the Claisen ester condensation product formula, means एसिटो-एसिटिक ईस्टर, ये इसका फॉर्मूला है. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एसिटो-एसिटिक ईस्टर किस रिएक्शन से सिंथेसाइज होता है, तो उसका भी आंसर यही है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर इज सिंथेसाइज्ड बाय options are cross-Classen's reaction, next option is Dickmann cyclization, next is Claisen ester condensation, and last option is Wittig reaction. So for this question the correct answer is Dickmann cyclization. जैसे कि बीटा कीटो ईस्टर फॉर्म करने के लिए क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन नेम रिएक्शन यूज होता है, वैसे ही साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर सिंथेसाइज करने के लिए डिकमन साइक्लिलाइजेशन यूज करते हैं, उससे साइक्लिक बीटा कीटो फॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज aldol कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ. यहाँ पे ये ऑप्शंस है 4 और हमें पूछा है कि एसिटाल्डिहाइड aldol कंडेंसेशन में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा. तो aldol कंडेंसेशन में 2 moles of acetaldehyde react in presence of NaOH to form alpha beta unsaturated aldehyde. So for these the correct option is A, because एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं और 2 मॉलिक्यूल लिया है तो प्रोडक्ट में आपके 4 कार्बन होने चाहिए. तो डी ऑप्शन में तो 3 कार्बन है, इसीलिए वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. डी इस कैनिज़ेरो प्रोडक्ट, ये इनकरेक्ट है. ए और सी में से ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सी ऑप्शन में डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, दैट्स वाई. और यहाँ पे ए इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ aldol कंडेंसेशन, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन इज मोस्ट स्टेबल? हियर आर द 4 ऑप्शंस. इसमें से हमें बताना है कि सबसे स्टेबल कार्बेनियन कौन सा है. तो यहाँ पे आंसर है बी, बिकॉज जो भी माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबल होगा. यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में CH को फिनाइल ग्रुप अटैच है और फिनाइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए बी इज मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन फॉर्म. द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट कीटोन ग्रुप इनटू C डबल बॉन्ड C मीन्स अल्कीन में. सो ऑप्शंस आर फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज एलाइड्स. यहाँ पे एलाइड्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है. ये अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बेनियन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ये एलाइड्स है वो कार्बेनियन का काम करता है. ये कार्बेनियम कीटोन पे अटैक्ट होता है और अल्कीन फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं विटिक रिएजेंट. कीटोन पे अटैक करने के बाद अल्कीन फॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज एलाइड्स टू कन्वर्ट कीटोन टू अल्कीन? अभी हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में.
तो ऑप्शंस आर क्रॉस क्लेजेंस रिएक्शन, ऑप्शन बी इज पर्किंस रिएक्शन, ऑप्शन सी इज क्लेजेन-स्टर कंडेंसेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज विटिक रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज विटिक रिएक्शन। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। इथाइल एसीटोएसीटेट कैन बी यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ, ऑप्शंस आर सिनेमिक एसिड, एसिटिक एसिड, alpha substituted acetone and last option is all of these. Ethyl acetoacid is also known as beta keto ester. So for these the correct option is alpha substituted acetone. तो बीटा कीटो ईस्टर का ये एप्लीकेशन है कि ये सिंथेसाइज करता है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन। Malonic ester is, options are acetoacetic ester, dimethyl malonate, ethyl acetoacetate. D option is both A and C. The correct answer is B, diethyl malonate. तो मैंने मेलोनिक ईस्टर का यहाँ फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे कैसे डाइथाइल, तो यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाइथाइल मैलोनेट, और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है इसीलिए ये मेलोनिक ईस्टर है। Next question 17 number. Diethyl malonate is used to prepare, options are succinic acid, cinnamic acid, acetone and last option is acetic acid. So the correct option for this question is succinic acid. ये malonic ester का application है। Question number 18. CH2 which is flanked by 2 electron withdrawing group is called as, options are. So for this question the correct answer is ऑप्शन डी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये मेलोनिक ईस्टर का है डाइथाइल मैलोनेट। यहाँ पे आप देख रहे हो CH2 2 कार्बोनिल के बीच में है, तो कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस मिथाइल को हम बोलते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ही मैंने दिया है, ये है बीटा कीटो ईस्टर और एसीटोएसिटिक ईस्टर का भी ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो दो कार्बोनिल के बीच में CH2 है और ये CH2 को बोलते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? ऑप्शंस आर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। नेक्स्ट इज ये बी ऑप्शन है बीटा कीटो ईस्टर है, सी ऑप्शन इज डाइइथिलीन मैलोनेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN cyanide group. So for this the correct answer is option A, because in option A there is a no reactive methylene group, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। And the last question of this video is, in which reaction when ethylene benzonate react with ethyl acetate to form ethyl benzoyl acetate? So option are Claisen ester condensation, cross Claisen reactions, option D is Dickmann cyclization and last option is Perkin reaction. So for these the correct answer is B, क्रॉस क्लेजन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट भी ईस्टर है और प्रोडक्ट भी ईस्टर है, तो ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट भी ईस्टर होता है और प्रोडक्ट भी ईस्टर होता है? वो क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन है। पर यहाँ पे 2 मोल ऑफ ईस्टर है, पर जो इथाइल बेंजोनेट है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और इथाइल एसीटेट में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। जब ऐसे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं जिसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस क्लेजन रिएक्शन। अगर 2 मॉलिक्यूल हमने ईस्टर का लिया है और दोनों में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट ईस्टर फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो ये 2 डिफरेंस है। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर मेलोनिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर एलाइड, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन है, PDF में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।